Done. So लेट मी स्टार्ट द बेसिक टॉपिक्स. 2-3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फिलहाल के लिए. एंड फ्रॉम 1st of March, as I said, moreover you can take 2nd of March. ठीक है, 2nd of March we'll commence the topic with full of the speed and as per the regular classroom pace. टिल द टाइम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ताकि लेट कमर्स अगर कोई 1st-2nd March तक ज्वाइन करता है, so that they also not feel any problem. Otherwise also, why I had started this session early, because I know during Holi many of us can be engaged in the festivals, so it won't be good कि 5-7 दिन का class lapse हो जाए. So considering that, you need to cover the syllabus and each and everything in the month of March only. And for that 7 days time को हमने extra रखा है कि अगर वो मिस भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज हमसे नहीं छूटेगी. Done. Confirm if my screen is visible to you. Is my screen is being shared? No, sir. Now? No, sir. Yes, no, anything? No. No, sir. No, sir. No, sir. Let me know अभी क्या मैं मीटिंग से आउट हो गया था just for 5 seconds, 6 seconds. सिर्फ आप दिख रहे हो सर. Okay. Hold on. My screen is not being shared. Okay, now it won't be problem, I guess. अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Do let me know if it is visible. Right? हाँ सर दिख रहे हैं. ठीक है. So yesterday I had explained 2 topics. Those are very basic and very easy to understand and very easy to know. That is the rules of 4W, ठीक है, definition of radio station and readability scale. So just to check your all readiness, I'd like to ask Alpha Juliet Delta, tell me all 5 readability scale. Victor Tango Alpha Juliet Delta. Stop the recording. Hello.
On only. Yes, sir. I'm audible, sir. Yes, sir. The readability one Go ahead. scale 1. Yes, sir. Readability scale 1. Unreadable scale 2. Readability was interrupting. And 3 readability is readability with difficulty. And 4th is readable but not loudly. It's readable. And 5th is perfectly readable. 5th scale is perfectly readable, loud and clear. ठीक ठीक है. So moreover he said right only, just for the second and third you need to be little क्या कहते हैं corrective, that you need to say the readability scale. If somebody will ask, then you need to say as per the bookish language, जैसा book में लिखा हुआ है. For that, if it is readability scale 1 means someone is unreadable. If it is 2, then readable now and then. Third is readable with difficulty, and 4 is readable. Fifth is perfectly readable. If we receive conversation out of 4 and 5, then only we can move ahead. If we are receiving out of 3, conversation can't proceed further. Okay? So as many times you are not readable to anyone, they will ask you multiple times. To be clear, simple, कि अगर आप 1 से 3 के बीच में रिसीव कर रहे हो कोई सा भी कम्युनिकेशन, simply don't proceed. ठीक है? Because there is always chance of miscommunication. Now we have seen the rules of 4 W's. ठीक है? 4 W. कौन कौन से W? W1 is whom are you calling? जिस स्टेशन को आप कॉल करोगे उस स्टेशन का कॉल साइन आप अपने कॉल में मेंशन करोगे. सेकेंड इज हु आर यू, कि आप कौन हो, आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपका कॉल साइन क्या है. थर्ड इज W3, व्हाई आर यू कॉलिंग, आप कॉल कर रहे हो किस पर्पस से आप कॉल कर रहे हो. एग्जाम आपका जिस फ्रीक्वेंसी का यूज करके आप कॉल करते हो उस फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना होता है एज ए W4. नाउ ये हमने देखा सबसे पहले रूल्स ऑफ 4W. readability is the definition of radio station. So for the definition of radio station, I'll repeat again. Any device or system ability to establish communication on radio telephony, those will be known as radio station. Simple. Such radio stations can be all ATC offices, your aircraft, ground radio controllers. Ground radio controllers में means quick response team के vehicles, follow me vehicles. ठीक है? इन सब का भी नाम होता है मोबाइल 1, मोबाइल 2, QRT1, QRT2. तो एयरपोर्ट पे जितने सारे ग्राउंड में एटीसी के स्टाफ के व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती है, उनके डैशबोर्ड पर भी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम फिक्स होता है. ठीक है? तो उसका यूज कर वो एटीसी से बात कर सकते हैं. तो उस गाड़ी को ओवरऑल स्टेशन बोला जाएगा. पोर्टेबल हैंड हेल्ड माइक्स या फिर रेडियो यूनिट्स, दैट इज योर वॉकी टॉकी. अगर आप अपने वॉकी टॉकी से एटीसी से बात कर पाते हो, then that walkie talkie is also a radio station. Now the interesting topic come here. ठीक है? Someone will may ask about aeromobile license. ठीक है? पार्ट सेकेंड, जो आप पार्ट सेकेंड देते हो आरटी का, जहां पे ओरल एग्जामिनेशन होता है, जहां पे वाइवा होता है, वहां पे this one is one of the popular question. क्या सूरज, would you like to define aeromobile license if you don't mind? Yes. What is Yes, aeromobile sir. license? एरोमोबाइल लाइसेंस एक सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू होता है WPC से. और ये इसमें क्या होता है, हमारे एयरक्राफ्ट के लिस्ट ऑफ जितने भी रेडियो ऑपरेटर्स होता है उसके बारे में डिटेल्स होता है. उसकी क्वांटिटी कितनी है और जो यूजेबल फ्रीक्वेंसी कितनी, कौन सी यूजुअल फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है उसके बारे में मेंशन रहता है. Very good. This is a certificate. ठीक है? Aeromobile license is a certificate or you can say document which is being approved by WPC, Wireless Planning and Coordination Wing. This is nothing but a listing of radio apparatus available to your aircraft. आपके एयरक्राफ्ट में जितने भी टाइप के रेडियो apparatus available हैं
उनकी ये लिस्टिंग होती है, प्लस उसमें क्या डिफाइन होता है कि कितने क्वांटिटी में वो आपके एयरक्राफ्ट में अवेलेबल है और उनका यूजुअल फ्रीक्वेंसी क्या क्या है. दैट्स ऑल. यू कैन सी दिस इज द एरोमोबाइल लाइसेंस ऑफ वन एयरक्राफ्ट. ठीक है. Now, for that, this is the original document for an aircraft. Here you can see, suppose in this aircraft there was a GPS receiver. Yes, it is listed. GPS receiver made by Collins Aerospace. ठीक है, that is manufacturer. सर आपका नेटवर्क GPS इशू है सर. 4000 replacement unit, line replaceable units. Okay, means you all are reading me too. How other station is receiving there? Alpha Juliet Delta. How do you read? Yes, sir. Reading सर 5. आपका नेटवर्क इशू है सर. Acha, you are reading 5. Another station. How am I audible to you? रेडियो 5 लेकिन कभी कभी रेडियो 3, रेडियो 2. अच्छा, लेकिन क्या ठीक है. So for that 3, is there any noise like a fan, पंखे का आवाज, आसपास vehicle movement like that only, or is there any technical glitch type? फ्लक्चुएशन वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है. Okay, got it. Done. So by the way, such fluctuations will be comes under readability scale 2. ठीक है. तो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डेविएशन ये सब 2 में आता है. 3 में हमेशा बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है. अगर किसी भी टाइप का बैकग्राउंड नॉइज है, देन ओनली दैट इज 3. किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिफॉर्मेशन, दैट विल कम्स अंडर सेकंड. नाउ कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड. मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हाँ सर. हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं. सपोज आपके एयरक्राफ्ट में जीपीएस रिसीवर अवेलेबल था, तो उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका मॉडल नंबर क्या है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड उसका यूजुअल फ्रीक्वेंसी क्या है. ठीक है. अब कोई जो कंपनीज होती है ज्यादा डिटेल में बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जीपीएस 4000 लिखने की जरूरत नहीं है. आप बस यहाँ पे, अगर आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे चाहो तो क्वांटिटी लिख दो. ठीक है. नेम ऑफ इक्विपमेंट लिख दो और फ्रीक्वेंसी लिख दो. इन तीनों डॉक्यूमेंट से भी आपका एरोमोबाइल लाइसेंस अप्रूव होता है. बेसिकली उनको ये जानने से मतलब है कि आपके एयरक्राफ्ट में कितने सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं और उनका यूजुअल फ्रीक्वेंसी कितना है और वो कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है. बस उनको वो एक्नॉलेज करते हैं. इनको डेविएशन करने का अनुमति नहीं है, ना ही ये आपके एरोमोबाइल लाइसेंस में किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन करेंगे. नहीं, आपने जो एयरक्राफ्ट बाहर से खरीद के लाया, उस एयरक्राफ्ट में जो कोई रेडियो इक्विपमेंट अवेलेबल है, आप क्या करते हो, वो इंटीमेशन देते हो एक तरह से डीजीसी डब्ल्यूपीसी में कि हमारे एयरक्राफ्ट में इतने सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं और उनका ये फ्रीक्वेंसी है. उसको वो लोग एक्नॉलेज कर लेते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है. किसी भी टाइप का ऑल्टरेशन वो नहीं कर सकते क्योंकि एयरक्राफ्ट आपका बाहर से बन के आता है. नाउ तो आप एक तरह से अपना इंटीमेशन देते हो डीजीसीए में कि हमारे एयरक्राफ्ट में ये सब लगे हुए हैं और इतने क्वांटिटी में लगे हुए हैं और इनका ये यूजुअल फ्रीक्वेंसी है. सो दैट इज एरोमोबाइल लाइसेंस. एरोमोबाइल लाइसेंस पहले और अभी भी इन द फील्ड दैट इज मोस्ट कॉमनली नोन एज एरोमोबाइल लाइसेंस. लेकिन इसका जो एक्चुअल में नाम होता है दैट इज एयरक्राफ्ट स्टेशन लाइसेंस. आपका एयरक्राफ्ट भी अपने आप में स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, जहां पे बैठ के आप एटीसी से बात करते हो. इसीलिए आपके एयरक्राफ्ट को भी एज अ स्टेशन रिकॉग्नाइज किया गया है. अर्लियर इट वाज ए थ्योरी कि योर एयरक्राफ्ट इज मूविंग, दैट्स व्हाई इट इज मोबाइल इन द एयर, सो इट इज एरो, तभी इसका नाम एरोमोबाइल लाइसेंस पड़ा. लेकिन your aircraft is also treated as an station. That's why this license nowadays are known as aircraft station license. ठीक है.
तो पार्ट 2 में आपसे पूछेगा ओरल वाइवा में कि क्या होता है एरोमोबाइल लाइसेंस, तो आपको इतने सारी चीजें बतानी पड़ेगी। नाउ बिफोर मूविंग अहेड we'll simply have a look on ATC hierarchy। ठीक है कि ATC जो ATC में बेसिकली हम लोग बोलते हैं ATC से बात करना है, ठीक है। तो ATC में कितने टाइप के ऑफिस अवेलेबल हैं, ठीक है, हम लोग उस पे नजर मारेंगे कि ATC में जो हम लोग कॉमनली बोल देते हैं ATC, आप सबने देखा होगा कि टावर होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे लोग ग्राउंड बोलते हैं, कहीं कहीं पे अप्रोच बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं। तो क्या है, क्या हायरार्की है, कितने सारे ऑफिस अवेलेबल हैं और कौन कौन से ATC के ऑफिस किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे बेसिक जो ATC ऑफिस आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा वो है आपका टावर, राइट। आपने कभी अगर किसी एयरफील्ड में एंट्री ली हो या कभी आपने एयरक्राफ्ट से फ्लाई किया हो तो जनरली आपका नजर जाता है टावर पे, राइट। सो यस, अगर कोई एरोड्रोम, ठीक है, अगर कोई एयरपोर्ट कंट्रोल्ड एरोड्रोम है या फिर अगर उस एयरपोर्ट पे जितने भी मूवमेंट हैं किसी न किसी ऑफिस के द्वारा अगर कंट्रोल किया जाता है तो वहां पे ATC का टावर रहेगा ही रहेगा, और वो टावर किसी ऐसे लोकेशन पे रहेगा जहां से वो पूरे एयरपोर्ट को देख पाए, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ATC का टावर किसी ऐसे लोकेशन पे रहता है जहां से वो पूरे के पूरे एयरपोर्ट पे नजर रख सके। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नजर देखे मतलब नेकेड आई से। समटाइम्स इफ दे कैन सी फ्रॉम नेकेड आई इट इज वेल एंड गुड। अगर वो नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं तो उनके पास बाइनोक्यूलर्स होते हैं, दूरबीन, वो उनसे देख सकते हैं, ठीक है। सो विल सी द हायरार्की ऑफ ATC ऑफिसेस, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले जो रेडियो का कंट्रोलर है, ठीक है, या फिर यू कैन सिंपली से बिग बॉस, किसी भी कंट्री में किसी भी रीजन में जो रेडियो कंट्रोलर होता है, जो फ्रीक्वेंसीज अलॉट करते हैं, जिनको हर एक रेडियो स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, वो कहलाता है FIR, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, और इसको हम लोग बुलाते हैं विद द नेम ऑफ रेडियो। तो इंडिया में 4 FIR, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो इंडिया में 4 FIR रीजन। एक और FIR रीजन है गुवाहाटी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बट विथ सर्टेन लिमिटेशन। वो सब FIR है अंडर द रीजन ऑफ कोलकाता। तो इंडिया में 4 FIR रीजन बेसिकली, और उनका कॉल साइन है। कॉल साइन मींस किस नाम से आप उनको कॉल करोगे, किस नाम से आपको बुलाया जाए, तो उनका कॉल साइन होता है रेडियो। इनका जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑन HF, ये VHF पे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको मुंबई HF स्टेशन से बात करनी है, मुंबई रेडियो कंट्रोलर से बात करनी है, तो हम बोलेंगे मुंबई रेडियो, लिख सकते हो RDO, रेडियो, कोलकाता रेडियो, लाइक दिस, और इनका यूजेबल फ्रीक्वेंसी है HF। इन जनरल हम एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में HF पे बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम, यू कैन सिंपली से नेग्लेजिबल, ना के बराबर हमको HF पे बात करनी पड़ती। जनरली हम लोग यूज करते हैं VHF का, ठीक है। सो VHF के लिए कौन कौन से ऑफिस हमारे पास अवेलेबल हैं? बेस्ड ऑन द साइज एंड ऑपरेशन, ध्यान रखना, कोई भी एयरपोर्ट कितना बड़ा है और वहां पे किस टाइप का ऑपरेशन है, कम ज्यादा कम ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि उस एयरपोर्ट पे कितने सारे ATC के डिपार्टमेंट रहेंगे, ठीक है। मोर और लेस अगर किसी भी एयरफील्ड में रेडियो कंट्रोल किया जाता है तो सबसे पहले वहां पे टावर एस्टेब्लिश किया जाता है। तो अगर मुंबई एयरपोर्ट के ATC टावर से हमको बात करनी पड़ेगी तो हम लोग उसका कॉल साइन बोलेंगे मुंबई टावर, ठीक है। लखनऊ एयरपोर्ट के
एटीसी टावर से हमको बात करनी है तो हम बोलेंगे लखनऊ टावर, ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट के एटीसी टावर से हमको बात करनी है, हम बोलेंगे कोलकाता टावर, ठीक है। सो सिमिलरली कॉल साइन, जब भी हम किसी एयरपोर्ट का किसी भी एटीसी का कॉल साइन लेते हैं तो जिस बेस का, जिस स्टेशन का वो एटीसी है और जो उसका डिपार्टमेंट आईडी है, जो उसके डिपार्टमेंट का नाम है, इसको कंबाइन करके हम उसका कॉल साइन बनाते हैं। बेंगलोर टावर, ठीक है, चेन्नई टावर, लाइक दिस हम लोग नाम लेते हैं, कोलकाता टावर, ठीक है। तो ये हो गया उनके कॉल साइन का मेथड। अभी देखो इसमें जो सबसे बेसिक लेवल का डिपार्टमेंट है, जो सबसे यू कैन सिंपली से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा सा कम, जिसके पास डिसाइडिंग फैक्टर है, जिनका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कम है, वो आते हैं एप्रॉन कंट्रोल, ठीक है। सबसे छोटा एप्रॉन कंट्रोल। किसी एयरपोर्ट पे 4-5 एप्रॉन बना दिए, एक एटीसी को इतने सारे मूवमेंट देखना टफ पड़ जाता है, नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एप्रॉन कंट्रोल बना देते हैं कि अगर किसी एयरक्राफ्ट को विद इन द एप्रॉन टैक्सी टोइंग करनी है, जो पार्किंग बे है, ठीक है, वहां पे किसी एयरक्राफ्ट को मूव करना होता है तो वो एप्रॉन से बात कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, ठीक है, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, इसका कॉल साइन होता है ग्राउंड, ठीक है। सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, इसका कॉल साइन होता है ग्राउंड। मुंबई ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड, चेन्नई ग्राउंड, ठीक है। अगर कोई एयरक्राफ्ट, सॉरी, अगर कोई एयरपोर्ट मिड साइज एयरपोर्ट है, मीडियम साइज का एयरपोर्ट है, जहां पे 2 से 3 एप्रॉन है मैक्सिमम, उस केस में अगर उस एयरफील्ड का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बिजी रहता है, 1 घंटे में 20 से 30 एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ डिपार्चर हो जाता है, तो उस केस में ग्राउंड ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि आप टैक्सी टोइंग देखो, रनवे तक हमारा हेल्प करो, एयरक्राफ्ट को पार्किंग बे से लेके रनवे तक आने में हमारी मदद करो, इसके बाद टावर देख लेगा। ग्राउंड मूवमेंट को जो कंट्रोल करेगा दैट इज सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर, उसको बोला जाता है ग्राउंड। मुंबई ग्राउंड, दिल्ली ग्राउंड, चेन्नई ग्राउंड। उसके बाद जो तीसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट इज टावर, ठीक है। रनवे पे किसी भी टाइप का मूवमेंट, टेक ऑफ, डिपार्चर, टेक ऑफ, रन, इनिशियल टेक ऑफ या लैंडिंग फेज, ठीक है, इनिशियल टेक ऑफ या लैंडिंग फेज अप टू 4000 फीट, ठीक है, अप टू 4000 फीट, ट्रांजिशन अल्टीट्यूड तक, ठीक है। ट्रांजिशन अल्टीट्यूड इज 4000 फीट ऑफ इन इंडिया फॉर मेनी ऑफ द एयरपोर्ट। तो 4000 फीट तक के टेक ऑफ, क्लाइंब, इन सारी चीजों को देखेगा टावर। रनवे पे किसी भी टाइप का मूवमेंट, टावर। देन इसके बाद आएगा एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल, और उसका कॉल साइन होता है अप्रोच, ठीक है, अप्रोच। जब आप किसी भी एयरफील्ड के नजदीक आ जाओगे तो कैसे उस एयरफील्ड पे लैंड करना है, कौन सा रनवे एक्टिव है, विंड्स किस डायरेक्शन में बह रही है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इज द वेदर कंडीशन फेवरेबल और नॉट, ये सब गाइडेंस जो आपको देगा दैट इज अप्रोच, ठीक है। तो टावर के बाद अप्रोच। उससे बड़ा होता है एरिया कंट्रोल सेंटर, एसीसी, और उसका कॉल साइन होता है कंट्रोल, ठीक है। एरिया कंट्रोल सेंटर क्या होता है, अगर आपका एयरपोर्ट ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा लार्ज है तो क्या होगा कि एक आपका एयरपोर्ट प्लस 2-3 छोटे छोटे एयरपोर्ट को मिला के एक एरिया कंट्रोल सेंटर बना दिया जाता है और उसका ऑफिस किसी एक बड़े एयरपोर्ट पे रहेगा। ये एरिया कंट्रोल सेंटर ओवरऑल अपने रीजन के हर एक फ्लाइट के मूवमेंट पे नजर रखेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहां से किधर जा रहा है ओवर द रेडार। तो एरिया कंट्रोल सेंटर का कॉल साइन होता है कंट्रोल। अगर हम मुंबई के एरिया कंट्रोल सेंटर को कॉल करेंगे तो बोला जाएगा मुंबई कंट्रोल, ठीक है। सो आई होप ऑल दिस हायरार्की इज नोन टू यू। अभी आपको बस
ये मत समझो, अगर आपको सबके काम समझने में प्रॉब्लम हुई है, यस आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मेनी थिंग्स येट टू कम, जस्ट लेट मी नो कि सबका कॉल साइन आपको क्लियर हुआ कि नहीं। कॉल साइन क्लियर है कि किसको किस नाम से बुलाया जाएगा? यस सर। डू लेट मी नो। ठीक है, आई एम ब्रीफिंग इट अगेन। एप्रोन कंट्रोल का मुंबई एप्रोन, ग्राउंड का सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर का मुंबई ग्राउंड, टावर मुंबई टावर, अप्रोच तो मुंबई अप्रोच, एरिया कंट्रोल सेंटर तो मुंबई कंट्रोल। ठीक है, किसको किस नाम से बुलाना है आप बस ये समझो, आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो एटीसी में इतने सारे डिपार्टमेंट ही होते हैं, एप्रोन कंट्रोल, ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोलर दैट इज सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर, टावर, अप्रोच, ठीक है, और कंट्रोल, 5, दैट्स ऑल। नाउ अभी हम थोड़ा सा देखेंगे पार्ट 1, जो आपका पार्ट 1 का एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक चार्ट दिया जाता है। ठीक है, सिंपली यू कैन से मैप और चार्ट। तो ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टोटल 8 पेज का, एज इट इज सेम चार्ट एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, एंड टोटल 2 टाइप के चार्ट ट्यूटर्स के पास भी अवेलेबल है और WPC के एग्जाम देते टाइम भी 2 टाइप के चार्ट देखे गए हैं। तो हम लोग दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, दैट विल कम, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल यू कैन सी, विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मुंबई एयरपोर्ट। अब देखो मुंबई एयरपोर्ट पे कितने सारे ATC ऑफिस अवेलेबल हैं, ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, राइट? जस्ट हैव अ लुक, मुंबई एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिस अवेलेबल हैं? SMC मतलब ग्राउंड, टावर, अप्रोच, कंट्रोल, यानी 4 ATC ऑफिस मुंबई एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, राइट? पुणे का देखो, पुणे के पास सिर्फ टावर है, औरंगाबाद टावर और अप्रोच, अहमदाबाद टावर अप्रोच कंट्रोल, ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। तो किस एयरपोर्ट पे कितने सारे ऑफिस अवेलेबल हैं ये आपको पता चलेगा चार्ट में। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इतने सारे डिपार्टमेंट जो आपने बताए मेरे को कैसे पता लगेगा, आपने तो बोल दिया बेस्ड ऑन द साइज एंड ऑपरेशन एयरपोर्ट पे रहेगा, कहां पता चलेगा कि किसके पास कितना है? ये लिखा रहेगा आपके एयरपोर्ट के चार्ट में। ठीक है, इसी को इन द फील्ड बोला जाता है रूट चार्ट, या फिर अगर आपका क्या कहते हैं डिजिटल कॉकपिट है, एवियोनिक्स सिस्टम एफिस है, इकास है, इकाम है, लेटेस्ट है, तो उस केस में आप लोग चढ़ाते हो ई चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स, जहां पे आपको हर एक एयरपोर्ट पे कितने सारे ATC ऑफिस अवेलेबल है लिखा हुआ मिलेगा। Am I clear till now? यस सर। ATC का ऑफिस समझ में आए? नाउ इसको बताने के पीछे का मकसद था मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेज अ स्टेशन, हाउ टू रेज द स्टेशन। रेजिंग द स्टेशन, एज आई सेड yesterday, रेजिंग द स्टेशन बेसिकली मीन्स नॉकिंग द डोर, इनिशिएटिंग अ कॉल। सपोज आपका फ्लिपकार्ट से कोई कुरियर आया, तो हाउ दे कॉल लाइक कि मिस्टर सूरज देयर, हम फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं, आपका कुरियर आया हुआ है, राइट? इतना ही बोलता है पहले, फिर फर्दर डिस्कशन आप लोग स्टार्ट करते हो कि अच्छा अभी मैं एड्रेस पे नहीं हूं, या फिर मैं 2 मिनट में अपने एड्रेस पे पहुंच जाऊंगा, या फिर आप पूछते हो कि क्या एड्रेस पे आ गए क्या? तो अगर वो आया हुआ रहता है तो बोलता है यस आई एम एट डाउन वेटिंग फॉर यू, या फिर बोलता है नहीं आफ्टर हाफ एन आवर आई विल बी रीच देयर, लाइक दिस। सो बेसिकली रेज द स्टेशन मीन्स कि आप सिर्फ कॉल लगा के ये कंफर्म करो कि जिस स्टेशन को आप कॉल करना चाहते हो दूसरे एंड पे वही स्टेशन अवेलेबल है कि नहीं, ताकि किसी भी टाइप की मिसहैप नहीं हो, किसी भी टाइप का मिसहैपनिंग नहीं हो। तो अगर मैंने बोला रेज द स्टेशन टू दिल्ली टावर, और आप जिस एयरक्राफ्ट में बैठे हो सपोज उस एयरक्राफ्ट का नाम है विक्टर टैंगो अल्फा यूनिफॉर्म विक्टर, तो इफ आई से
रेज द स्टेशन टू दिल्ली टावर, तो आप बोलोगे दिल्ली टावर, ठीक है, विक्टर टैंगो अल्फा यूनिफॉर्म विक्टर, बस। W1 एंड W2, इन दोनों W का यूज करके आप जो कॉल देते हो इसको बोलते हैं रेजिंग द स्टेशन। क्लियर? अगर आपको बोले कोई रेज द स्टेशन टू मुंबई ग्राउंड, और आप जिस एयरक्राफ्ट में बैठे हो उस एयरक्राफ्ट का नाम है डेल्टा ऑस्कर विक्टर, तो आप बोलोगे मुंबई ग्राउंड, ठीक है, मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो डेल्टा ऑस्कर विक्टर। इसका मतलब आपने स्टेशन रेज किया, आपने कॉल इनिशिएट किया। इन द रिस्पॉन्स वो भी आपको कॉल का आंसर करेंगे रेजिंग द स्टेशन ओनली। अब देखो, कल हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ 4W। W1 कहता है whom आर यू कॉलिंग। अगर आपको आंसर करना है तो जिस स्टेशन को आप कॉल कर रहे हो उसका कॉल साइन सबसे पहले, उसके बाद आपका खुद का इंट्रोडक्शन कि आप कौन हो, फिर थर्ड आता है व्हाई आर यू कॉलिंग, एंड फोर्थ आता है विच फ्रीक्वेंसी यू आर यूजिंग। सो स्टेशन रेज करने में आप सिर्फ W1 एंड W2 का यूज कर रहे हो। हम किसको कॉल कर रहे हैं? मुंबई ग्राउंड को। हमारा कॉल साइन क्या है? विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। सो आई से मुंबई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो, दिस इज W1 एंड दिस इज W2। इन द रिस्पॉन्स एटीसी जब कॉल बैक करेगा तो एटीसी किसको कॉल कर रहा है? मुझे। सो ही विल से विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो। नाउ we become W1 for ATC। ATC के लिए हम लोग W1 है, क्योंकि whom they are calling? They are calling us. So he told Victor Tango Alpha November Kilo. Then उसका खुद का कॉल साइन, उसका खुद का कॉल साइन क्या है? मुंबई ग्राउंड। अंडरस्टूड दिस टू फॉर्मेट? कि कोई भी स्टेशन कॉल करेगा रूल्स ऑफ 4W को फॉलो करेगा। जिस स्टेशन को कॉल कर रहे हो उसका कॉल साइन पहले, उसके बाद आपका कॉल साइन कि आप कौन हो। अंडरस्टूड? गॉट इट? Yes, no, anything? Is that clear? Yes, sir. Okay. So let me help to raise the station with call sign Victor Tango Alpha Bravo Charlie, and you need to raise the station with Mumbai approach. Do this. Anyone can take initiative, give the call. Raise the station to Mumbai approach. Mumbai approach Vector Tango Alpha Juliet Delta. Victor Tango Alpha Juliet Delta Mumbai approach. Go ahead. ठीक है, इसी टाइप से कॉल जाता है। Like he was Alpha Juliet Delta, he called Mumbai approach and close with his call sign. अभी मैंने रिस्पॉन्स दिया तो मैं बोलूंगा विक्टर टैंगो अल्फा जूलियट डेल्टा W1 एंड देन मेरा कॉल साइन क्या? मुंबई अप्रोच। सो दिस इज द रेजिंग ऑफ स्टेशन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक, एंड ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और फील्ड में ऑलमोस्ट लगभग डेली इसका लोग यूज करते ही करते हैं। सो how to perform the readability check? Readability check means whatever the call you are giving, you are making sure कि whether they are receiving you on a scale of 4 or 5 or not. ठीक है, अगर 4 से 5 के स्केल पे आपको सुना जाएगा तभी आप कम्युनिकेशन प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रीडेबिलिटी चेक। रीडेबिलिटी चेक का फॉर्मेट क्या है? Suppose I want to perform readability check with Mumbai ground. So I will say Mumbai ground, ठीक है, Victor Tango Alpha November Kilo. Now Mumbai ground is W1, Victor Tango Alpha November Kilo is W2, and then I had used
frequency on 123.5. This is the frequency of Mumbai ground. And then I had given a number 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 and then I had asked how do you read. Explain करता हूं, समझोगे सब कुछ. Now आप सबने गांव में कभी कभी क्या कहते हैं, जब भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस होता है या किसी भी टाइप का पार्टी फंक्शन होता है, तो जो भी वहां का ऑडियो ऑपरेटर रहता है, जो भी वहां पे म्यूजिक सिस्टम का ऑपरेटर रहता है, जब वो माइक टेस्टिंग करता है, हैव यू हर्ड एवर दे आर सेइंग हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5, इस टाइप से कम्युनिकेट करता है ना, इफ यू हैव हर्ड एवर, राइट. तो वो क्या कर रहा है माइक टेस्टिंग में, दे आर जस्ट स्प्रेडिंग अ रैंडम नंबर. वो कुछ भी बोल के बस ये चेक कर रहा है कि मेरी आवाज दूसरे तक पहुंच पा रही है कि नहीं. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड हियर कि 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1 is the format of readability check. No, this is just a random number. आप चाहो तो इसको यूज करो, नहीं चाहिए तो मत करो. Standard phrase for the readability check is how do you read. आप लोग हमेशा सिर्फ 4 वर्ड बोलोगे. How do you read. Don't say how do you read me. Neither say how are you reading me. ठीक है. Nor say how are you reading me. कुछ नहीं. Simple. How do you read. Simple present tense. ठीक है. How do you read. अभी आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ा है W1, W2, W3, W4, तो आपने W4 को W3 से पहले क्यों यूज किया. W4 तो बाद में होनी चाहिए, राइट. ये तो गलत हो गया. यस, W3 एंड W4 आर इंटरचेंजेबल. ठीक है. Why? To just make your call suitable and it will look better format in your transmission. Rules of 4W जो है ये ऐसा नहीं है कि ये आपको एक ऑर्डर देता है. दिस इज जस्ट इंडिकेशन कि आपके आंसर में ये चारों W दिखने चाहिए, होने चाहिए. ठीक है. W1, W2 का फॉर्मेट बेस्ट. W3 एंड 4 कैन बी इंटरचेंज्ड. अब आप बोलोगे इंटरचेंज्ड में सर आपने तो बोल दिया कि एज पर योर सुटेबिलिटी, बट माय सुटेबिलिटी इज कि मैं W3 को पहले यूज करूंगा और W4 को बाद में यूज करूंगा. आई एम कंफर्टेबल ऑन दिस. तो आपको परेशानी हो रही थी, आपने चेंज कर लिया क्या? नो. जस्ट हैव अ लुक ऑन द चार्ट. जो आपको रूट चार्ट दिए जाते हैं एग्जाम में, आपको वहीं पे पता चलता है ना कि किस एयरपोर्ट का क्या फ्रीक्वेंसी है, किस स्टेशन का. कैसे? जस्ट हैव अ लुक. भुवनेश्वर टावर का फ्रीक्वेंसी क्या है? 123.5, राइट. ऑन द स्क्रीन जस्ट हैव अ लुक. इस चार्ट को यूज करके आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हो. जैसे ही आप ये डिसाइड करते हो कि हमारा कॉल जाएगा भुवनेश्वर टावर को, वहीं पे आपको दिखता है फ्रीक्वेंसी. तो क्यों ना पहले फ्रीक्वेंसी वाला काम निपटा लें और लास्ट में बैठ के हम पर्पस डिस्कस करते रहेंगे. सो सपोज माय एयरक्राफ्ट इज अल्फा नवंबर किलो. सो आई विल से भुवनेश्वर टावर विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो ऑन 123.5. ठीक है. हाउ डू यू रीड. लाइक दिस. फ्रीक्वेंसी हमको साथ ही साथ मिल जाता है, तो पहले फ्रीक्वेंसी बोल के हम बेसिक चीज कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में हमारे पास बचता है W3, मतलब इंटेंशन ऑफ योर कॉल. मुद्दा क्या है आपके बात करने का, क्यों कॉल किया था आपने. दैट्स व्हाई W3 एंड W4 आर इंटरचेंज्ड. क्लियर? समझ में आया ये चीज सबको? ओनली W3 एंड W4 कैन बी इंटरचेंज्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, कि आपको अगर बोला जाए कि रीडेबिलिटी चेक करो तो व्हाट कुड बी द बेस्ट फॉर्मेट. बेस्ट फॉर्मेट इज गिवन टू यू एज सिंपल. सपोज यू वांट टू परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक विथ चेन्नई ग्राउंड, तो आप क्या बोलोगे? चेन्नई ग्राउंड. ठीक है. ग्राउंड का शॉर्ट फॉर्म क्या था? SMC, सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर्स. तो सरफेस मूवमेंट कंट्रोल बोलो चेन्नई ग्राउंड. अब देखो, जो आप स्टेशन का कॉल साइन बोलते हो उसको लिखने के कई सारे तरीके. आप चाहे तो पूरा का पूरा लिखो चेन्नई ग्राउंड. ठीक है.
या फिर आप चाहे तो ऐसा लिखो चेन्नई GND ग्राउंड, या फिर जो इनका इकाऊ कोड आता है हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको भी लिख सकते हो चेन्नई ग्राउंड SMC। तो हमने अभी लिखा चेन्नई SMC, चेन्नई ग्राउंड विक्टर टैंगो अल्फा नंबर किलो on 1 to 1.9er. How do you read? This is the format of readability check. क्लियर? यहां पे अगर आपका मन है तो बीच में रेंडम नंबर यूज करो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। नहीं मन है मत यूज करो। So if somebody will say कि what is the format of readability check or you want to perform readability check, don't be confused कि 1 2 3 4 5 बोलना ही है। No, keep it simple। ठीक है, just give a call using W1 W2 and ask the purpose। how? I'm giving a format, just have a note down। Chennai ground Victor Tango Alpha November Kilo frequency कुछ भी हो सकता है बट ये मैं अपने मन से बना रहा हूं 1 to 1.9er। हाउ डू यू रीड? सिंपल, ये हो गया आपके रीडेबिलिटी चेक का फॉर्मेट। अब उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी W1 W2 W3 फॉलो करेंगे, रूल्स ऑफ 4W को फॉलो करेंगे। तो उधर से रिस्पॉन्स आया क्या? विक्टर टैंगो अल्फा नवंबर किलो मुंबई ग्राउंड read U5 means you are perfectly readable। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन है कि आप बोल सकते हो रीडिंग U5। ठीक है, आइदर रीड U5 और रीडिंग U5 दोनों परमिसेबल है। ठीक है, सो इन द रिस्पॉन्स ऑफ रीडेबिलिटी चेक यू कैन से रीडिंग U5 और रीड U5। अब क्या होता है कई बार कि वो वाला स्टेशन जिसने आपको रीडेबिलिटी चेक दिया ये तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया, आपने पूछा कि हाउ डू यू रीड, तो वो आपको ऑन अ स्केल ऑफ 5 सुन रहा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उसको परफेक्टली नहीं सुन पाओ, वो आपको रिसीव कर रहा है ऑन अ स्केल ऑफ 5 बट यू माइट नॉट रिसीविंग ऑन अ 5, यू माइट रिसीविंग हिम ऑन अ 3। तो बदले में वो भी आपसे पूछ सकता है हाउ डू यू रीड, कि मैं तो आपके कॉल को अच्छे से रिसीव कर रहा हूं, आप मुझे कैसे सुन रहे हो? सो इफ दे हैड आस्क्ड यू देन यू ऑल्सो शैल गिव अ रिप्लाई। कैसे? रीड U5 स्ट्रेंथ 5। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रीडेबिलिटी चेक। अभी अभी क्या करोगे? फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स MS टीम्स पे आपका नेम एडिट होता है। ठीक है, आप अपने लिए कोई भी हाइपोथेटिकल कॉल साइन चुन लो। ठीक है, और अपने मन से जो भी आपका मन करे एक हाइपोथेटिकल कॉल साइन डिसाइड कर लो और कल से अपने MS टीम्स पे अपना कॉल साइन एयरक्राफ्ट के कॉल साइन से रखना। ठीक है, also in classroom I don't prefer to take name always, that is not a good idea, so I'll call you from your call signs, from your aircraft registration call signs। तो आप अपने लिए कोई सा कॉल साइन चुन लो और कल से हम लोग डेली जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करोगे आपकी सबसे पहली ड्यूटी रहेगी परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक। ठीक है, रीडेबिलिटी चेक हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिफोर गोइंग अहेड ऑफ एनीथिंग एंड डजंट मैटर, सपोज हमने क्लास आधे घंटे पहले स्टार्ट किया, आप आधे घंटे बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो बिल्कुल मत शर्माओ, बिल्कुल मत घबराओ। whenever you had joined do the readability check there, then and there only, so that I can also came to know कि how many people had joined, who had joined and whomsoever are available। ठीक है, तो रीडेबिलिटी चेक का प्रैक्टिस हम लोग डेली करेंगे, कभी भी इसको मिस आउट नहीं करेंगे। होप आई एम क्लियर अबाउट रीडेबिलिटी चेक। अगर किसी पॉइंट पे डाउट है एनीवन कैन आस्क मी अबाउट रीडेबिलिटी चेक।
Is there any? Have you doubt about anything for readability check, or am I clear? Clear, sir. Okay. Then give a call for readability check. थोड़ा सा ट्रायल भी हो जाएगा. I am Bangalore ground. ठीक है. I am Bangalore ground and my usual frequency is 127.3. Now, you want to give a readability check call to me? Go ahead. Anyone? Don't be Bangalore shy. ground. Take the lead. मैं ट्राई करूं सर? Yes, yes, yes. Please Bangalore go ahead. ground. Vector Tango Alpha Juliet Delta on 127.3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Very good. So this is the call for readability check. In the response, I have said, ठीक है, Victor Tango Alpha Juliet Delta, Bangalore ground, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Reading U5. How do you read? I read U5. Vector Tango Alpha Juliet Delta. Very good. Okay, so this is the readability check call. Very simple. So from tomorrow onwards, whenever anybody will join, simply perform the readability check with your hypothetical call sign. आप अपना कॉल साइन आपको जो मन करे, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप अपना कॉल साइन अपने मन से रख लो. कल से हम लोग जब भी मिलेंगे, सबसे पहला टास्क अपना रहेगा परफॉर्म रीडेबिलिटी चेक. ठीक है. सो टिल टुडे जस्ट लेट मी समराइज द टॉपिक्स. ठीक है, लेट मी समराइज द टॉपिक सो दैट इट वोंट बी हर्डल फॉर न्यू कमर्स. ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रेडियो स्टेशन. ठीक है. रूल्स ऑफ 4 Ws. ठीक है. रीडेबिलिटी स्केल. ठीक है. रीडेबिलिटी स्केल. And then we have also seen raising a station, how to raise a station. ठीक है. And then we have seen readability check format, how to give a call for readability check, right? So these 5 topics we have seen in these 2 days, 3 days. Don't worry, these topics are such a basic topic within 15 minutes everything can be revised. 15 मिनट में इसको दोबारा से पढ़ाया जा सकता है. ठीक है. So if I share the lecture schedule, you can see these 2 topics covers 2 of our lectures. ठीक है. So don't be worry. आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ज्यादा टफ नहीं जाएंगे, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मेनी. तो 2 दिन का लेक्चर हमने कवर कर लिया. ठीक है. टॉपिक्स आर वेरी बेसिक. कल हम लोग पढ़ेंगे एरोनॉटिकल फोनेटिक्स, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, ये सारे. ठीक है. छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग पहले कवर कर लेंगे सो दैट यू कैन मेक अ फाउंडेशन इजिली. ठीक है. फॉर यू, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, देन गो एंड फाइंड एरोनॉटिकल फोनेटिक्स ए से लेके जेड तक किसको क्या बोला जाता है, गूगल पे अवेलेबल है. आप जाओ, पता करो और अपने साइड से रिवाइज करके प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है. सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. Tomorrow and day after tomorrow, again I'll put up for demo classes. After 1st March, doesn't matter how many people have joined, how many people has taken admission. From 2nd March, we'll continue with our topic. ठीक है. Irrespective of thinking anything, हम लोग 2nd March से अपने टॉपिक को पकड़ के आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे. और तब तक मैं जितने भी छोटे छोटे टॉपिक कवर कर देता हूं मैं. ठीक है. जितने भी टॉपिक आई हैड एक्सप्लेन्ड, we will take it as a covered topics. ठीक है. बाद में इसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटे टॉपिक है और रिपीट करूंगा तो आपके लिए ही बोरिंग होगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर बीइंग अवेलेबल. ठीक है.
कीप ऑन ट्रैक ऑफ 2 मार्च। 2 मार्च से हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे विथ आवर फुल स्पीड। ठीक है, so I'm closing this session here only. That's good enough for today. We'll see you tomorrow same 9 o'clock. Is that okay? Yes, sir. And Yes, hope sir. all those topics are clear to everyone. All 5 topics are clear? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड होंगे 2-3 टॉपिक के साथ। चलो, that's all for today. Good night. See you tomorrow. Good night, sir. Good night. Bye bye. Good Good night. night. Bye bye.